ओके, सो मून महादशा, तो जैसा कि यू कैन गेस, इट इट इज अ वेरी इमोशनल महादशा. You become very emotional during the mahadasha. Okay, so yeah, you can find a strong connection and attraction towards females in Mumbai during moon mahadasha. And the placement of moon also will tell more about moon mahadasha. Like किसी का moon अगर 6th house 8th house में है, तो it may bring more qualities of that house. While if somebody's moon is in 4th house or 1st house, so it will bring more positive results. Okay. So this is basics of moon mahadasha. So now let's read the positive moon mahadasha. 1 minute आप read करो, then we will discuss. Okay, so it is basically again a very positive Mahadasha, as Moon is a benefic planet. So it is bringing quite good and positive results in yours. So this is Moon Mahadasha for you. But yeah, it depends on the placement of Moon also. There, or even Purani Venus or Sun ki Mahadasha maybe you have to see what is the dignity of your that planet, जिसकी Mahadasha चल रही है. It will also create an impact. Okay, so let us now study all planets के साथ मून की महादशा कैसी रहेगी. तो मून और मून जब साथ में आ जाता है तो इट इज लाइक हाईली इमोशनल स्टेट. So it may lead to mood swings and restlessness also in your mind. Okay, so that is something you need to check moon mahadasha ke time, and meditation and Om Namah Shivaya chanting are very powerful during moon mahadasha. And for Taurus and Cancer, it will be very good as moon is exalted in Taurus and moon त्रिकोण in Cancer. और किसके लिए मून महादशा, कौन से ascendant के लिए it may not be good? Can anybody tell? स्कॉर्पियो के लिए शायद अच्छा नहीं होगा. Yeah, Scorpio. Okay, तो now let us discuss कि और दूसरे ग्रह के साथ कैसा रहेगा. तो सन के साथ मून का महादशा कैसा रहेगा, सन अंतर्दशा इन जनरल. बैलेंस्ड होना चाहिए बहुत. It will be good. मेंटली. Okay, so as you can see, Sun, Mars and Jupiter के साथ it's very good. ठीक है, while Mercury, Venus और शनि के साथ it may have a negative impact also. Okay, now you will think कि Venus के साथ तो मून की अंतर्दशा पॉजिटिव होती है काफी, तो मून के साथ Venus की अंतर्दशा नेगेटिव क्यों हो रही है? So can anybody tell? Sanket, can you tell? मून के साथ वीनस का अंतर्दशा पता नहीं. संगीता जी. मरकरी वीनस के मून के साथ फ्रेंडली नहीं है, नहीं मानता अपने आप. Yes, so here we have to see the friendship also. इन दोनों की फ्रेंडशिप कैसी है. तो फ्रेंडशिप जिसकी तरफ से गड़बड़ होगी उसके साथ अंतर्दशा में थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट रहेगा. ओके, तो फ्रेंडशिप वाला चार्ट याद है ना सबको? शैल बी चेक फ्रेंडशिप चार्ट वंस अगेन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट अबाउट द अंतर्दशा.
Okay, so Venus, can you see? Venus किसके साथ enemy है? Sun and Moon के साथ. So that's why when Venus is coming in Antardasha of Moon, then Venus is not that happy. While Moon किसके साथ enemy है? किसी के साथ नहीं. Venus के साथ equal है. ठीक है? तो जनरली मून जब किसी की अंतर्दशा में आता है ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो जनरली मून किसी भी प्लेनेट की अंतर्दशा में आता है तो वो बेनिफिक ही रिजल्ट्स लाता है. क्यों? क्योंकि उसकी कोई एनिमी नहीं. लेकिन जो लोग मून को अपना एनिमी मानते हैं, जैसे कि सैटर्न हो गया, वीनस हो गया और मरकरी हो गया, तो ये तीनों क्या है, मून को अपना एनिमी मानते हैं. तो जब मून की अंतर्दशा में ये तीनों आते हैं तो ये कैसे रिजल्ट्स लाते हैं? मेलेफिक. अंडरस्टैंडिंग नो? आ रहा है ना समझ में? तो यहाँ से हम लोग पता लगा सकते हैं, दिस फ्रेंडशिप टेबल we can use to find in general about how the antardasha will be for a particular planet in particular mahadasha. लेकिन for specific आपको किसी इंसान के लिए निकालना है तो you have to see the dignity of both the planets in their chart also. Understanding? अपूर्व जी आ रहा है ना समझ में आज तो? यस भैया. थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है. Yes. Udit? Yes. Okay, so let us again move to Moon. ओके, मून हो गया. फिर मून के बाद कौन सी महादशा आती है? Mars. Mars. Very nice. Okay, so let us now move to Mars. Mars. So Mars कौन सी चीजों का कारक होता है उदित? What is the qualities of Mars? What are the things associated with Mars? It signifies courage, valor, initiatives, dominance. Yeah, so let us read this slide. Mars represents ego, sports, and high energy. So during this time, there are high chances that you get interested in these fields. All good sportsmen, soldiers have a strong and positive Mars during their important and good shift in the calendar. Mars is a powerful planet, so any problem coming your way will be curved under the good impact of Mars. So Mars is the direct of energy, basically. So it brings a lot of energy during its even Antardasha and Mahadasha. It is the most aggressive planet among all the planets. ठीक है, तो let us read about the positive Mars Mahadasha effects. Yeah, you can read. So one thing is for sure, it is good for your career, especially जहाँ पर activity dynamism involved. Okay, so Mars, this is what Mars is bringing. Mars Mahadasha is bringing. Yeah, like, okay. So now let's see how does other planets impact Mars Mahadasha.
Okay, so yeah. Yeah, so here you can see कि मार्स महादशा के अगर नेगेटिव इफेक्ट, तो मार्स किसी का अच्छे से प्लेस नहीं है. So it can lead to danger, accidents, property loss, poor career, and extremely slow growth in business. Even anger and quarrels. किसी का मार्स कुंडली में अच्छे से प्लेस नहीं है. So this is one thing you should take care. Okay. So मार्स किसके साथ फ्रेंडली है? सन, जुपिटर एंड मून. तो सन, मार्स के साथ सन, जुपिटर और मून की अंतर्दशा इज वेरी गुड. मार्स रूलिंग साइंस है एरीज एंड स्कॉर्पियो, तो डेफिनेटली एरीज और स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के साथ मार्स की महादशा बहुत ही अच्छी रहेगी. एंड फॉर ओके, सो किसके साथ मार्स की, कौन से एसेंडेंट के लिए मार्स की महादशा इतनी अच्छी नहीं रहेगी? कैन एनीबॉडी टेल? डोलन, अपूर जी. कैंसर. प्रियंका. वर्गो असेंडेंट. वर्गो तो वीनस का हुआ ना, वीनस का. मार्स के लिए कौन सा है डेबिलिटेशन? कैंसर. 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 या तो कैंसर के साथ इतनी अच्छी नहीं रहेगी. इधर गलत लिखा है, लियो एंड कैंसर. कैंसर वोंट बी देयर. ओके. इवन तो कैप्रिकॉर्न. भैया मुझे क्वेश्चन है. हम्म. मेरा माय एसेंडेंट इज कैंसर एसेंडेंट, और मेरा 5th हाउस में मार्स है, लेकिन वो कंबस्ट है, और साथ में वो वहाँ पे राहु भी है, और वो भी 5th हाउस में. तो कैसा मिक्स रिजल्ट देगा ना, जैसे अभी आपने बताया, क्योंकि मार्स तो पीरियड हो गया कंबस्ट की वजह से. हाँ, तो दिस इज एक्चुअली कंबस्ट मार्स इज गुड, क्योंकि वो फिर नेगेटिव एनर्जी नहीं दे पाएगा इतनी, उसकी एनर्जी कम हो गई है थोड़ी. तो वो, तो जो अंतर्दशा में प्लेनेट होगा ना, उसका इम्पैक्ट काफी है कंपेयर टू मार्स का इम्पैक्ट. सो या, समझ में आ रहा है ना लोगों को व्हाट ही आस्क्ड? तो या, दिस इज समथिंग वही कि इन जनरल व्हाट आई एम शोइंग इज वेरी जनरल थिंग, लेकिन आपकी कुंडली में मार्स कैसा बैठा है उसके बेसिस पे पता लगेगा. तो स्पेशली फॉर यू, सो कब से कब तक है उदित योर मार्स महादशा? मेरा तो अभी मेरा भी सन का महादशा चालू है, और अप्रैल से मून का महादशा स्टार्ट होगा. मतलब 20, मतलब अभी क्या 22 10 साल ना, मतलब 32, मतलब फिर 32 के बाद मार्च का स्टार्ट हो जाएगा. ओके. हाँ, तो ठीक है फिर उस टाइम देखना. उस टाइम मार्स इतना वो नहीं है, तो उसकी एनर्जी कम रहेगी, तो अंतर्दशा वाले का इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा इन दिस केस, बिकॉज मार्स इज कंबस्ट. ओके. और कितना डिग्री पे ओके, कंबस्ट है? ओके. सन की डिग्री कितनी है और मार्स की कितनी है? हाँ, एक मिनट में आपको बता देता हूँ. अभी अगर 10 से ज्यादा डिग्री है तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं. जो मार्स का जो डिग्री है भैया, मार्स का डिग्री 11 डिग्री है, और सन का डिग्री 0 डिग्री है. तो ठीक है, फिर इतना अंतर नहीं पड़ेगा. तो इसका मतलब सन और मार्स एक हाउस में भी नहीं बैठे, राइट? नहीं, सन और मार्स एक ही हाउस में है, और सन है, इसके लिए मार्स कंबस्ट हो गया, और वो मेरे 5th हाउस में है, और साथ में उस घर का जो राशि है वो स्कॉर्पियन है, वृश्चिक राशि. और मेरा लग्न है कैंसर. ठीक है, तो कंबस्ट हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन मार्स स्ट्रांग है. तो पहली बात तो मार्स पे इतना ज्यादा इफेक्ट लगेगा नहीं कंबशन का, क्योंकि एक तो 11 डिग्री है, प्लस स्कॉर्पियो में है, तो ऑटोमेटिकली इट इज इन मूल त्रिकोण, इट इज काइंड ऑफ डिसेंटली स्ट्रांग. तो इट इज ओके. इट इज डिग्निटी उसकी अच्छी ही है, तो इट विल गिव गुड रिजल्ट्स. ओके. तो मुझे और एक प्रश्न पूछना था, क्योंकि बाद में उसकी जो सैटर्न की दृष्टि भी है, वो भी 10वीं दृष्टि, क्योंकि मेरा सैटर्न 8th हाउस में है, और वो स्व राशि में है, 11th राशि है 8th हाउस में, मतलब वो आ गया एक्वेरियस में मेरा सैटर्न है, वो भी 8th हाउस में. उसकी 10वीं दृष्टि पड़ती है मेरे 5th हाउस में. तो कैसा है,
तो वो भी और एक एस्पेक्ट कंसिडर करना पड़ेगा, राइट? डेफिनेटली। तो संकेत बताएगा। संकेत, तो ये कैसा रहेगा? भैया सैटर्न का भैया क्योंकि खुद के हाउस में है तो मे बी उसका एस्पेक्ट इतना नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन मैलेफिक तो रहेगा ही सैटर्न का एस्पेक्ट, तो Malefic। हाँ थोड़ा तो रहेगा ही। लेकिन हाँ, दिस इज वेरी करेक्ट, सिंस इट इज इन एक्वेरियस व्हिच इज द मूल त्रिकोण ऑफ सैटर्न। रिमेम्बर मूल त्रिकोण। तो इस वजह से उसकी डिग्निटी अच्छी है सैटर्न की, तो इतना मैलेफिक। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। आई और होप। भैया और एक मेरे कुंडल में और एक एस्पेक्ट है। मेरा 4th हाउस में जुपिटर है, मतलब जुपिटर का दृष्टि मेरे 8वें घर पे भी पड़ेगा, तो सैटर्न का जो मैलेफिक इफेक्ट होगा वो भी कम हो जाएगा ना। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड। सी, सो दिस इज हाउ वी शुड एनालाइज दैट। बहुत ही अच्छा। उदित ने बहुत ही अच्छे से देखा कि जो एस्पेक्ट कर रहा है उस पे किस किस का एस्पेक्ट है। दिस इज द एक्चुअल प्रोसीजर। यू हैव टू सी ऑल द 3 थिंग्स। कौन एस्पेक्ट कर रहा है कौन से ग्रह पे, और जो एस्पेक्ट कर रहा है उस पे उसकी डिग्निटी कैसी। उसकी डिग्निटी देखने के लिए यू हैव टू चेक दूसरे ग्रहों का भी एस्पेक्ट। आई होप सबको समझ में आ रहा है ना, डोलन, प्रियंका, संगीता जी, अपूर्व जी। तो जैसे आपने भैया, बताया था, हाँ और भैया आपने जैसे, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए आप बोलिए। हाँ, कौन बोल रहा है? ठीक है, कोई नहीं बोल रहा तो कंटिन्यू करें। कोई कुछ बोल रहा था? हाँ हाँ, तो भैया मतलब जैसे आपने बताया क्या था कि अगर वीनस साथ में जुपिटर है तो वीनस का जो एनर्जी वो बैलेंस हो जाता है। तो मेरे में भी ऐसा ही है, 4th हाउस में वीनस है और भी स्व राशि में है। मतलब वहाँ पे ये है, लिब्रा है, हम्म। उसमें वीनस है, साथ में जुपिटर है और साथ में मर्क्यूरी भी है। तो हाँ, तो मेरा मरकरी मरकरी आने से थोड़ा दिक्कत हो गया। वीनस जुपिटर अकेले होते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ठीक है, इट्स गुड ओनली। ठीक है, तो हाँ, और मेरा वीनस, हाँ वीनस का महादशा 2016 तक था। बाद में मतलब पूरा बचपन मेरा वीनस के महादशा में निकल गया ऐसा। ओके। तो पढ़ाई करी कि नहीं? वीनस की महादशा में पढ़ाई तो करी नहीं होगी। ने पढ़ाई की ना, अच्छा, ग्रेजुएशन हो गया और एमबीए भी कर लिया। नहीं पढ़ाई वैसे तो करी डिग्री के हिसाब से, लेकिन कितनी करी? आई एम आस्किंग दैट। हाँ, ठीक ठाक है, एवरेज करिए। साथ में हाँ, मैंने मेरा ज्यादा इंक्लिनेशन टुवर्ड म्यूजिक था, ये मैंने नोटिस किया ड्यूरिंग माय टीनेजर्स। सो आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स म्यूजिक, दैट टू क्लासिकल और तबला, हारमोनियम, वहाँ पे मेरा ज्यादा हाँ, तो इंक्लिनेशन है। ठीक है, यू हैव तो स्ट्रॉन्ग वीनस, यू शुड लर्न। वीनस इन लिब्रा इज वेरी हाँ, गुड। ठीक है, वो तो भी 4th हाउस में। या गुड। तो लेट्स सी मार्स महादशा विद अदर प्लेनेट। तो हाँ, मार्स भी हो गया। तो नाउ इट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि कौन सा प्लेनेट अंतर्दशा में आएगा तो क्या इम्पैक्ट रहेगा। ओके, तो मार्स के बाद कौन सा आता है? Even I have got- उसका या राहु। राहु, राहु आता है। हम्म, राहु। ओके, तो लेट्स सी दैट स्लाइड वंस मोर, जिसमें बताया था कि लास्ट। भैया यस। पूछ रही थी कि जेमिनी के लिए भी मार्स का दशा उतना अच्छा नहीं होगा। जेमिनी के लिए मार्स का दशा आप खुद ही बताओ, मरकरी के साथ कैसा है मार्स का? मार्स का तो मरकरी के साथ अच्छा नहीं है, एनिमी हम्म है तो। हम्म, ठीक है, और भी चीजें देखनी पड़ेगी, तो ऐसे ही आप एकदम कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक केवल जेमिनाई और मार्स को देखोगे तो इतना पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी इन दिस स्लाइड, लास्ट भुक्ति ऑफ मार्स दशा इज मार्स मून। मून भुक्ति prepares the material mind for the approaching Rahu dasha and his attachment to the world. The moon is archetype of soul's descent into form. Rahu is the subconscious attachment to the materiality and its ability to eclipse the mind. तो आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है वो भी आपके बारे में ना बहुत बताता है, कौन से हाउस में राहु बैठा है। तो मे बी वन होमवर्क यू कैन राइट डाउन, एनालाइज योर राहु व्हेन यू आर एट योर होम। एनालाइज द प्लेसमेंट ऑफ योर राहु एंड केतु। उसमें अच्छे से KRS का वीडियो देख के पता करना कि राहु आपको कैसा है।
Okay, so let us move to Rahu. भैया ये जैसे जो दशा की एंडिंग है, जो अंतर्दशा होती है और जो नेक्स्ट शुरू होने वाली होती है, ये भी मतलब कनेक्टेड है ना? जैसे हाँ, ये मून का इसने बताया कि मतलब पहले वो पुश करता है मटेरियल की तरफ, सो दैट अगला दशा इज ऑल अबाउट वही है ना, illusion। यस एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग ना, कि जो ट्रांजिशन होता है तो एकदम ब्रिज की तरह काम करता है। जो लास्ट अंतर्दशा होती है ना, वो नेक्स्ट महादशा और इस अंतर महादशा के बीच का ब्रिज होता है। तो वो बहुत ही पावरफुल होता है वो ट्रांजिशन फेज। और जो अंतर्दशा भी आती है ना, वो भी इसी ऑर्डर में आती है। पहली अंतर्दशा होती है, जो प्लेनेट होता है उसी की होती है। जैसे मार्स की महादशा चालू हुई तो पहली अंतर्दशा मार्स की होगी। सेकंड अंतर्दशा किसकी होगी? केतु, राहु। राहु। नहीं नहीं, राहु राहु राहु। हाँ, थर्ड किसकी होगी? जुपिटर। जुपिटर। ऐसे करके लास्ट किसकी होगी? मून की। आ रहा है ना समझ में? लास्ट मून की क्यों हुई? अभी राहु के साथ पहली महादशा अंतर्दशा होगी राहु की, तो लास्ट अंतर्दशा किसकी होगी? मार्स। हाँ, संगीता जी, दोलन आ रहा है ना समझ में? कि अंतर्दशा का भी ऑर्डर सेम ही रहता है जो ये ऑर्डर है। ओके, और ये ऑर्डर कैसे डिसाइड हुआ है? ये अपने कार्मिक अनफोल्डिंग के हिसाब से डिसाइड हुआ है कि कैसे कैसे हमारा कर्माज अनफोल्ड होते हैं। जो काल महापुरुष कुंडली होती है उसमें एरीज को लग्न मान के जो ऑर्डर डिसाइड हुआ वो ये ऑर्डर है। ओके, तो लेट अस मूव टू राहु फिर जुपिटर। ओके, राहु महादशा। तो राहु महादशा कितना? 18 साल चलती है। ओके, सो यू कैन रीड। राहु इज अ वेरी ट्रिकी। वो काफी अच्छा फल भी दे सकती है और सबसे खराब भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन योर प्लेसमेंट ऑफ राहु एंड द डिग्निटी ऑफ राहु, क्योंकि इट इज नॉट अ प्लैनेट इन रियलिटी, इट्स जस्ट अ शैडो। तो if it is badly placed, as I said, it can bring misery, and if it is well placed, it can bring lot of achievement and success. जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज होते हैं ना, यू विल सी इनका राहु बड़ा स्ट्रांगली प्लेस होता है। तो ये उनको काफी मटेरियल, फेम, अचीवमेंट, सक्सेस लगता है। Rahu and Ketu are two shadow planets formed from 21. So yeah, but there are high chances of falling prey to demonic habits. तो किसी ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सुना था कि he was into smoking and drinking and गांजा वगैरह, ड्रग्स वगैरह। तो सी, अर्लियर जब उसकी एकदम सुसाइड हुआ था तो पीपल थॉट कि ही इज वेरी स्पिरिचुअल और ऐसे ऐसे, बट लेटर ऑन यू सो उसके वीडियोस भी काफी सारे आउट हुए, वो स्मोकिंग गांजा, चरस और समथिंग। एंड देयर आर सो मेनी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। वो कौन सी ये डिपार्टमेंट है, एक एनसीए, क्या नाम है? एनसीबी, एनसीबी, हाँ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। हाँ, कितने सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को पकड़ा है, दीपिका पादुकोण, बड़े बड़े। So see, you can understand why this is the reason, Rahu. So the placement of Rahu must be in the right house. You can see massive wealth and excellent outcome, quick results also. So अभी 10 मिनट में हमें राहु कंप्लीट करना है। तो या राहु इज वेरी पावरफुल। लेकिन ये है कि राहु पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा लोगों का, दैट इज समहाउ नॉट गुड फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि राहु आपको ना माया और मटेरियल थिंग्स के बारे तरफ दौड़ाते रहेगा। और राहु आपकी कुंडली में अगर पॉजिटिव है तो आपको चीजें वो मिल भी जाएगी, लेकिन इट इज नॉट गुड फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो फिर जन्मों जन्मों में आपको फिर वही करना पड़ेगा, यू वोंट बी एबल टू कम आउट। तो समहाउ इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज टू नॉट हैव गुड राहु, टू हैव गुड भैया,
भैया ये मतलब बहुत पहले मैं ऋषि विद्याधर जी के एडवांस कोर्स में बैठा था, तो ही हैड सेड समथिंग अबाउट राहु। उनने बोला कि राहु ऐसा प्लैनेट है जो पूरे साल में ना 15 आवर्स पॉजिटिव रहता है, पूरे साल में, लाइक इन 365 इट 15 आवर्स पॉजिटिव रहता है। एंड ही सेड कि उन्हीं 15 आवर्स में से कुछ में गुरुदेव पैदा हुए। तो मतलब ये सच है क्या? ये मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन अब ऋषि जी ने बोला तो सच ही बोला होगा। 15 आवर्स तो नहीं मतलब ऐसा नहीं है, राहु पॉजिटिव तो रहता है, ऐसी बात नहीं। काफी लोगों की कुंडली में राहु पॉजिटिव रहता है। दैट्स व्हाट दिस इज योर होमवर्क फॉर नाउ, फाइंड आउट ऑन फ्रॉम इंटरनेट राहु कितना पॉजिटिव रहता है, कौन कौन सी राशि में पॉजिटिव रहता है। तो ऐसा नहीं है। सो मतलब शायद ऋषि जी का पॉजिटिव का डेफिनेशन होगा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव, बट यू कैन फाइंड आउट, तो इस पे रिसर्च करके आओ। ओके, तो positive Rahu Mahadasha effect. So yeah, you can quickly read. So Rahu can bring unexpected luck in your way. This is very interesting. एकदम से कुछ भी करवा सकता है राहु, इतनी पावर है राहु में। It provides you with power and courage. So if you remember the story of Rahu, he has a lot of courage. That's why he went to the Devatas for drinking the Amrit. ठीक है, तो राहु का खुद का कोई हाउस नहीं, जिस भी प्लेनेट के साथ वो होता है ना, उसका वो इफेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है डिपेंडिंग ऑन योर बर्थ चार्ट, एज यू कैन रीड। अब नेगेटिव राहु के बारे में भी पढ़ते हैं। राहु महादशा में नेगेटिव इफेक्ट कराते हैं। अगर राहु की आपकी प्लेसमेंट नेगेटिव है तो आपकी फैमिली में काफी फाइट होगी, माइंड रिलेटेड डिसीजेस डेफिनेटली। आपका सिर राहु में आता है तो या माइंड रिलेटेड थिंग्स, mental disorders especially. Nervous system is ruled by Rahu. The nervous system or mental disorders. So the main reason for that is Rahu. बहुत सारे लोगों का आपने सुना होगा पैनिक अटैक, सुसाइडल टेंडेंसीज। तो ये डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स एंड सुसाइडल टेंडेंसी, मेन रीजन फॉर दीज थ्री इज राहु। उनका राहु खराब हो रखा है किसी तरीके से। तो किसी की कुंडली में आपको ये दिख रहा है तो यू हैव टू फर्स्ट चेक देयर राहु, एंड देयर आर रेमेडीज, लॉट ऑफ रेमेडीज फॉर राहु। ओके, एंड it can create problems in your love life, multiple failed love affairs. If you are married, then daily quarrels. This is also one of the characteristic of Rahu. And most importantly, it brings a lot of confusion, especially if it is negatively placed. काफी कंफ्यूजन लेके आता है आपकी लाइफ में। तो कोई इंसान बहुत कंफ्यूज दिख रहा है आपको आपके आसपास, आपकी फैमिली फ्रेंड्स में, तो जस्ट चेक हिज कुंडली और देखो उसकी अंतर्दशा है, महादशा में राहु तो नहीं है। तो इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ राहु, द नेचर इज लाइक दिस। सो यू नो, एस्ट्रोलॉजी मेक्स यू वेरी कंपैशनेट। किसी इंसान की कुछ गड़बड़ है ना, कमी है, बिहेवियर खराब है, तो यू कैन फाइंड आउट इजीली इट फ्रॉम देयर चार्ट। और जब आप चार्ट देख के ये पता लग जाता है कि हाँ इस वजह से इसको ये दिक्कत है, देन यू रियलाइज कि अरे ही इज नॉट द डूअर, बेचारे का चार्ट ही खराब है तो उसकी गलती क्या है। यू डोंट हैव दैट एनी एंगर और एनी थिंग अगेंस्ट सम पर्सन। सो दिस इज अ वेरी गुड यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। भैया लेकिन इवन जस्ट बाय कॉमन सेंस, अगर मतलब राहु महादशा में कोई बहुत ही मतलब क्या कहते हैं मटेरियल चीजों की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, तो वो जनरली भी कंफ्यूज रहेगा ना। नॉट नेसेसरीली, लेकिन हाँ, तो राहु डिसीजन मेकिंग तो अफेक्ट करता है। लेकिन अगर उसका मरकरी और जुपिटर बहुत स्ट्रांग है और जुपिटर का एस्पेक्ट है स्पेशली राहु पे, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग।
राहु पे अगर जुपिटर का एस्पेक्ट है तो इट वर्क्स वेरी वेल, क्योंकि जुपिटर इज अ वेरी पावरफुल प्लैनेट। तो दैट पर्सन, जैसे गुरुजी की कुंडली में भी राहु जुपिटर का 7th एस्पेक्ट है, तो वही जिनकी कुंडली में राहु पे बेनिफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है, तो इट कैन गिव यू रियली गुड रिजल्ट्स। मतलब आपका जो एनर्जी है ना, जो दिमाग है, मटेरियल थिंग्स भी है, उसको भी वो स्पिरिचुअल डायरेक्शन में लोगों के फायदे के लिए यूज करेगा। देयर आर सो मेनी पीपल लाइक रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी, इन दोनों का भी राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट दे आर डूइंग सम गुड थिंग्स फॉर द सोसाइटी आल्सो बिकॉज ऑफ द जुपिटर एस्पेक्ट ऑन राहु। तो राहु विल गिव यू मटेरियल थिंग्स, बट अदर प्लैनेट्स आल्सो कैन अफेक्ट इट एंड दे विल डिसाइड कि अल्टीमेटली आप उसको कैसे यूज करोगे। ओके, सो लेट्स स्टडी और प्लैनेट्स के साथ राहु का कैसा है। तो सबसे खतरनाक होती है राहु के अंदर केतु की अंतर्दशा। इट इज वेरी वेरी डेंजरस, और काफी लाइफ के बड़े बड़े इवेंट हो जाते हैं ऐसे। किसी की फैमिली में किसी की डेथ देखनी हो या बहुत सारी चीजें देखनी हो, तो राहु की महादशा केतु की अंतर्दशा में दिक्कत होने के चांसेस रहते हैं। ओके, एयर और वाटर साइन के साथ राहु वर्क्स वेल। सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियन एसेंडेंट के साथ इतना अच्छा नहीं रहता है उसका। जुपिटर, मरकरी और मार्स अंतर्दशा में इट इज फेवरेबल। So yeah, this is a generalized approach. And Rahu Antardasha under Rahu Mahadasha can also be very tricky. तो उसमें क्या रहता है, राहु महादशा राहु अंतर्दशा में एकदम से सडनली कोई चीज राइज होती है, फिर एकदम से गिर भी सकती है, फॉल भी हो सकती है। सो दिस इज ऑल्सो लिटिल ट्रिकी। तो राहु के केस में being balanced and center is very important. And Sudarshan Kriya, since Rahu is a Vata planet, air element dominating planet है, तो सुदर्शन क्रिया is the best remedy for Rahu, क्योंकि वो आपकी air element को purify करती है, प्राणायाम एंड सुदर्शन क्रिया। So that's why राहु, सुदर्शन क्रिया जो डेली करते हैं उनका राहु वैसे ही ऑटोमेटिकली अच्छा रहता है। So yes, any question about Rahu? Then we will move to next after the break. भैया आपने बताया था कि जो राहु है वो इज ऑलवेज रेट्रोग्रेड, तो रेट्रोग्रेड होने के बावजूद भी वो नेगेटिव पॉजिटिव होता है? नहीं, वो तो ऐसा ही है ना, वो नेगेटिव पॉजिटिव देखना पड़ेगा उसकी राशि, कौन सी राशि में कैसा रहता है, राशि से देखना पड़ेगा, प्लस उस पे किस किसकी दृष्टि पड़ रही है, प्लस उसका प्लेसमेंट कौन से हाउसेस में। अंडरस्टैंडिंग? यस। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि अगर राहु ग्रह अगर 5वें घर में आ गया तो वो कुछ दोष होता है, पितृ दोष होता है, ऐसा क्यों कहते हैं? पांचवा घर किसका होता है? पूर्व जन्म कर्मा का, और उसमें राहु है मेलेफिक प्लैनेट, तो इसका मतलब क्या है कि पिछले जन्म में आपने कुछ तो गड़बड़ किया है। और दूसरा रीजन ये भी है, 5वां भाव होता है प्रोजेनी का, ठीक है, बच्चे का, और राहु 5वें भाव में है, तो इसका मतलब नेचुरल बर्थ नहीं होगी, मतलब देयर कैन बी चांसेस ऑफ मिसकैरेज और ऑपरेशंस। तो दिस इज आल्सो वन अदर रीजन, ठीक है। तो लेकिन वो कितना इंटेंसिटी होगा वो हाँ, उसकी डिग्निटी से पता लगेगा कैसा है वो। लेकिन इन जनरल 5वें भाव में मेलेफिक प्लैनेट थोड़ा तो गड़बड़ करता ही है, राहु शनि मंगल,